Welcome everybody to this new lecture of our series Electricity and Magnetism. Today we are discussing about the applications of Stokes theorem. Yesterday we are discussing about the Stokes theorem. Mathematically, the Stokes theorem simply convert a surface integral into a line integral. Today we are discussing about the application of this theorem. The first application of this theorem is known as Faraday's law, or how we can derive Faraday's law using the Stokes theorem. Okay, mathematically, Faraday's law can be written in this form. E is right in this sign. E equals to, E is here not the strength of electric field, but it is here represent the electromotive force. Okay, so E can be written as E equals to minus d phi b over dt, where phi b is the magnetic flux. Okay, this is the Faraday's law, and we studied it in the chapter of magnetic induction. Okay, basically in language, Faraday's law stated that the electromotive force belonging to a coil is equal to the rate of change of magnetic flux with time bounded to that particular coil. Okay, हिंदी में अगर हम इसे बोलना चाहें तो हम कहेंगे कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है या बराबर होता है. प्रोपोर्शनलिटी के साइन को किसी भी कांस्टेंट को एज्यूम करके वहां से रिमूव कर सकते हैं. तो बेसिकली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ Faraday's law is the electromotive force, or we simply say that EMF, E for electro, M for motive, F for force. Okay, and the right hand side is denoted the rate of change of magnetic flux bounded to some coil with time, d by dt, rate of change with time. Okay, now the electromotive force can be written as, means the line integral of E dot dl. How can we write the electromotive force as the line integral of electric field? This is the line integral of electric field. How can we write it? The procedure to write the electromotive force in the form of line integral of electric field is given by the definition of electromotive force. What is the definition of electromotive force? This here. The definition of electromotive force is this. What? The electromotive force is equal to the work done by moving a unit charge into the external circuit in which a cell is connected. Okay, means अगर आपको एक यूनिट चार्ज को किसी एक्सटर्नल सर्किट में मूव कराने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है, द वर्क डन by moving a unit charge into an external circuit is known as electromotive force. It means dW, or more simply W, is equal to the work done F dot dl, the line integral of force, and this is the closed path. So F is the force which driven the unit charge.
ओके, जो उस चार्ज को घुमाने में सहायता कर रहा है, वो फोर्स है एफ। और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिलेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, दैट एफ इक्वल्स टू क्यू ई, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू the charge into the strength of electric field. For the unit charge, Q equals to 1 coulomb. What this relation replaced by? F equal to E. And what is the definition we read here of electromotive force? That EMF equal to dW equal to line integral of force F dot dl. And what is the significance or conclusion of force we derive here? That for a unit charge Q equal to 1, F equal to E, any force equal to strength of electric field. That force is replaced by E dot dl. Okay, so this is the reason why we write electromotive force as the line integral of electric field. Okay, so the equation which is known as Faraday's law or statement of Faraday's law mathematically convert into this problem. E, that is electromotive force, EMF, is equal to the line integral of electric field, and the right hand side इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। माइनस साइन बहुत कन्वीनियंस नहीं है यहाँ, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है केवल, इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। तो फ्लक्स फाई बी, व्हाट इज फाई बी? फाई बी प्लेइंग द सेम रोल इन मैग्नेटोस्टैटिक्स एज फाई ई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स करता है वही काम मैग्नेटोस्टैटिक्स में मैग्नेटिक फ्लक्स करता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स के बारे में हम पीछे पढ़ के आए हैं कि फ्लक्स क्या होता है। अगर पर्टिकुलरली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो किसी भी एरिया से, क्लोज्ड सरफेस से, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly through a closed surface is known as electric flux. Phi E equal to E dot ds. This is the relation. Similarly, in the same way, what is magnetic flux now? The magnetic flux is equal to the number of magnetic flux line passing through a closed surface, that is denoted by phi b and written as b dot ds in the same way as phi e equal to e dot ds. इस सरफेस एरिया, इन्फिनिटिजिबल सरफेस एरिया से पास होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, सो phi b can be written as phi b equal to b dot ds. See on your screen. phi b, ये जो यहाँ टर्म थी इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया? सरफेस इंटीग्रल ऑफ b dot ds. Okay, now using Stokes theorem. What is Stokes theorem? Because Faraday's law is the application of Stokes theorem, then this statement decides that we can derive Faraday's law using Stokes theorem. Okay, तो स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि आप सिंपली किसी भी सरफेस इंटीग्रल को एक क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में बदल सकते हैं मैथमेटिकली, और किसी भी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को आप सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं अगेन मैथमेटिकली। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, वो
चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि आप मुझे सरफेस इंटीग्रल में बदल दें, बिकॉज इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली हमने जो सीखा है स्टोक्स थ्योरम में वो है क्या कि स्टोक्स थ्योरम हमें ये कहती है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस वी डॉट ds is equals to closed line integral of v dot dl। तो क्या स्टेटमेंट में अंतर है? इस वेक्टर v की जगह जो हमारे पास वहां वेक्टर फील्ड था, इसकी जगह हमारे पास क्या है? केवल अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास राइट हैंड साइड तो है, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। यानी बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है, परिवर्तित करना है। ओके, सो इन दिस वे we can convert a line integral of electric field into the surface integral of electric field, which is the use of Stokes theorem. Okay, so equation number 1 changes into this form. Why? Because of this replacement. आपने लेफ्ट हैंड साइड जो थी line integral, closed line integral of E dot dl can be replaced by the surface integral of curl of E dot ds। तो आपने इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया? ये रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की ये फॉर्म आ गई। अब जो डेल डी बाई डी टी बाहर लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ इंटीग्रल के, इसे हम इंटीग्रल के अंदर लेके आते हैं। और सिंपली आप मैथमेटिक्स में ये समझ सकते हैं कि अगर डी बाई डी टी इंटीग्रेशन से बाहर है और आप ये चाहते हैं कि आप इसे इंटीग्रेशन के अंदर रखें, तो अंदर लेके जाएं, ऐसे कोई इमरजेंसी है, तो आप क्या करेंगे? जब भी इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो ये डेल में कन्वर्ट हो जाता है, डेल बाई डेल टी। इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे अभी, पर मैथमेटिकली आप केवल फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, तो जो डी बाई डी टी हमारे पास यहाँ बाहर था तो अंदर गया, तो वो बन गया डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस। ओके, यहाँ एक कन्वर्जन मैंने लिखा है, डी बाई डी टी कहाँ चेंज हो गया? डेल बाई डेल टी में। ओके, सो वी हैव नाउ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डॉट डी एस इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस। तो दोनों के दोनों यहाँ सरफेस इंटीग्रल में लिखना शायद भूल गया, लेकिन आप ऐसा ना करें। यहाँ क्या आएगा? सरफेस इंटीग्रल। ओके, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड नाउ दिस इज द राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को कहाँ लेके जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि दोनों सरफेस इंटीग्रल है, आप यहाँ देख रहे होंगे ये भी सरफेस इंटीग्रल है और ये भी सरफेस इंटीग्रल है। ये माइनस की टर्म है, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो किस में बदल जाएगी? पॉजिटिव टर्म में बदल जाएगी। और ds दोनों में से क्या आ जाएगा? डॉट कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सरफेस इंटीग्रल s ऑफ डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी बाई डेल टी। डेल बी बाई डेल टी कहाँ से आया? फ्रॉम द राइट हैंड साइड, डॉट ds इक्वल टू 0। दिस इज द रिजल्ट। नाउ एज द सरफेस इज आर्बिट्रेरी, सरफेस आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी सरफेस का मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है आप किसी भी सरफेस के ऊपर अप्लाई कीजिए तो रिजल्ट यही रहेगा। तो सरफेस आर्बिट्रेरी होने की वजह से क्या होगा? हमारे पास इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई प्लस डेल बी बाई डेल टी डॉट डी एस इक्वल टू 0 है। सिंस सरफेस इज आर्बिट्रेरी दैट मीन्स डी एस डज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस क्वांटिटी मस्ट बी इक्वल टू 0। सो डेल क्रॉस ई डी बी बाई डी टी को फिर से हम राइट हैंड साइड में लेके गए और हमारे पास रिजल्ट आता है डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, विच इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Faraday's law. What suggests this? This suggests that the rate of change of magnetic flux on the right hand side, this term. What is this term suggest? The rate of change of magnetic field with time is equal to the curling or movement
of electric field. This term on the left hand side. So this is the differential form of Faraday's law. Okay. अगर इसको इंटीग्रल फॉर्म में हमको देखना है तो इंटीग्रल फॉर्म हम पहले भी लिख के आए हैं. दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ Faraday's law. Okay. So this is the first application of Stokes theorem in the form of Faraday's law. We studied these two laws in our coming syllabus. Okay, so remember this is the differential form of Faraday's law, and this is the integral form of Faraday's law. Okay, this is ये कोई नई इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 है. ओके, तो दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म. एक्चुअली जो डिफरेंशियल फॉर्म है फैराडे लॉ की, वो मैक्सवेल की एक इक्वेशन में से एक है. 4 मैक्सवेल इक्वेशन आप पढ़ेंगे इन द एंड ऑफ दिस सिलेबस, तो उनमें से एक इक्वेशन ये भी है. ओके, तो ज़्यादा डिटेल्स में हम बात वहीं करेंगे जब हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन आ जाएंगी. सो फॉर कन्वीनियंस आप ये याद रख सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ Faraday's law and this is the integral form of Faraday's law. Okay, now move forward. हमें ग्रीन थ्योरम को स्टडी करना है और एक प्लेन में स्टडी करना है. ठीक है, प्लेन मीन्स 2 डायमेंशनल सरफेस. ठीक है, नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दिस इज द 2 डायमेंशनल एक्सिस और यहाँ एक सरफेस बना है. इसको भी आपने स्टडी करना है. या ये जो ग्रीन थ्योरम इन प्लेन है, ये एक स्पेशल केस है स्टोक्स थ्योरम का. ओके, तो आप इसे एक इस तरह से भी रिमाइंड कर सकते हैं, द स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम. सो नाउ वी हैव रिजल्ट फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम दिस, दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डॉट डी एस is equals to line integral of E dot dl. This is also known as the integral form of Faraday's law. यहाँ जो E है, E is any vector field defined at every point of the area or surface, जो इस surface के प्रत्येक बिंदु पर डिफाइन है. यहाँ भी E है, यहाँ E हो सकता है, यहाँ E हो सकता है, यहाँ E हो सकता है, यहाँ हो सकता है. यहाँ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर फील्ड पूरे इस सरफेस में डिफाइंड है. ओके, अब लेट E इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, यानी हमने इसके कंपोनेंट फॉर्म में इसको डिवाइड कर दिया और dl को भी हमने इसकी कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड कर दिया. अच्छा, हमने dl को ऐसा क्यों नहीं लिखा dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz k कैप? Why? The answer is because we are dealing in a plane and plane is a 2-dimensional figure. और ये जो फिगर यहाँ ड्रॉ की गई है ये भी बता रही है कि केवल x और y एक्सिस प्लेन किए गए, तो हमारे पास जो इन्फिनिटिजिबल लाइन सेगमेंट रहेगा वो भी किस में रहेगा, केवल x एक्सिस की तरफ रहेगा और y एक्सिस की तरफ रहेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम इसकी इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, E डॉट डी एल, हालांकि ये शायद राइट हैंड साइड है जैसे कि ऊपर लिखा है. ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दोनों ही साइड हमें इवेलुएट करनी है. तो लेट्स फर्स्ट टेक द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ पुटिंग द value of E, that is this, and dl, that is this, dx I cap plus dy j cap, and taking the dot product of these two quantity, we get this, the closed line integral of Ex dx plus Ey dy. Now on to the left hand side, the surface integral of del cross E dot ds. Okay, now here is the thing that we have to be stressed, that is when you take the curl of E, you remember that you have to be take the
curl with z component of E. Although the plane is xy, but the plane of del cross E, A cross B, what is the plane of a normal unit vector? The direction of the normal unit vector is in the direction of z का. जैसे हमने A क्रॉस B में हमने पीछे सीखा है कि अगर कोई दो वेक्टर आपस में क्रॉस कर रहे हैं तो रिजल्ट इज ए बी साइन थीटा n cap. And what is n cap? N cap is the normal unit vector which is pointed into the direction perpendicular to the plane of A and B and have magnitude equal to 1 unit. Okay, that is the sign, that is the sense. Okay, so surface line integral, surface integral जब हम करेंगे तो जो कर्ल लेंगे हम z का वो उसके z कंपोनेंट के साथ आएगा. दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड. तो जो z के साथ इसका कर्ल लेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, वो राइट हैंड साइड थी, तो हम दोनों के रिजल्ट को इस फॉर्म में समराइज कर सकते हैं. दिस इज द स्पेशल केस ऑफ स्टोक्स थ्योरम नोन एज ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन. तो एक स्पेशल केस के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं. ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड. corollary 1, that is the conclusion और हिंदी में हम उसे कह सकते हैं निष्कर्ष. corollary of 1, ये corollary है स्टोक्स थ्योरम की. तो स्टोक्स थ्योरम बेसिकली जो corollary 1 है उसमें हमें क्या बताती है कि अगर आप डेल क्रॉस वी करें यानी और डॉट डी एस करें, दैट मीन्स द सरफेस integral, that is the left hand side of Stokes theorem, depends only on the boundary line, not on the particularly surface used. यानी जो सरफेस इंटीग्रल आप कर रहे हैं इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टोक्स थ्योरम, वो किस तरह का सरफेस आप यूज कर रहे हैं उससे कुछ भी डिपेंड वो नहीं करता. वो केवल किसकी, इस जो सरफेस की लाइन है जिसने वो लाइन जिसने इस सरफेस को इनक्लोज किया हुआ है, केवल इस पे डिपेंड करता है. ये बाहर वाली सरफेस इस पे. ठीक है, तो कोई भी नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सरफेसेस. किसी भी तरह का सरफेस आप ले लीजिए, इस तरह का ले लीजिए तब भी रिजल्ट सेम आएगा. इस तरह का सरफेस ले लीजिए तब भी रिजल्ट सेम आएगा. इस तरह का सरफेस ले लीजिए तब भी रिजल्ट सेम आएगा. यानी ये जो टर्म है ये कभी भी सरफेस पर डिपेंड नहीं करती. आप कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस लीजिए ये सेम रिजल्ट पुट करेगा. दिस इज द corollary 1. नाउ corollary 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. It suggests that the closed surface integral of left hand side of Stokes theorem is equal to 0. Why equal to 0? Because this gives the closed line integral of what is the vector here? Okay, v dot dl. आप इस तरह से समझ सकते हैं इसे. ये एग्जांपल है, ये कोई बलून है और बलून को पहले इसका या घड़ा मान लीजिए, बलून मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पहले इसका इतना मुंह खुला हुआ था, यहाँ से हवा जा सकती थी. ठीक है, ये हुआ. अब ये इसका क्लोज्ड सरफेस है तो इसके पास लाइन अभी है. लाइन का मतलब ये है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो साइड है एक्चुअली जो इसमें अंतर समझ में आ रहा है आपको कि इस corollary को कैसे लिखा गया है. दिस corollary राइट फॉर द क्लोज्ड सरफेस, नॉट दैट दिस सर्कल. ओके, बेसिकली जो स्टोक्स थ्योरम हमारे पास होती है वो कैसी फॉर्म की होती है, ऐसी फॉर्म की होती है. सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस वी डॉट ds इज इक्वल टू क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ v dot dl. This is the form.
हियर इज नो क्लोज्ड सरफेस, यानी वो जो सरफेस है वो जिसका हम जो उस लाइन को जो जो वो लाइन बाउंड करती है वो क्लोज्ड नहीं है, नो सर्कल हियर। बट अगर इस कोरोलरी को आप देखें, इस कोरोलरी में वो क्लोज्ड सरफेस है, और आप ये देख रहे होंगे ये सरफेस था पहले, इसके पॉइंट्स थे, ये इसका पाथ था, लाइन इंटीग्रल इस पाथ के अकॉर्डिंग हो सकता है। इस सरफेस को थोड़ा सा हमने क्लोज कर दिया, तब भी ये सरफेस अभी क्लोज्ड नहीं है, तो इसका लाइन इंटीग्रल हो सकता है। लेकिन अगर इस सरफेस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया जाए तो ये जो लाइन इंटीग्रल अब हम कहां करेंगे, हमें कुछ पता नहीं कि हम लाइन इंटीग्रल अब क्या करेंगे। दैट इज द क्लोज्ड सरफेस का कुछ भी लाइन पाथ नहीं होता, लाइन इंटीग्रल नहीं कर सकते आप। तो जो राइट हैंड साइड है ये वाली, ये जीरो हो सकती है, हो जाती है, ठीक है, ये जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है जीरो? आप इसको और भी सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टोक्स थ्योरम की वो ये है कि डेल क्रॉस वी डॉट ds, इसको हमने कहा चेंज कर दिया, द क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट dl, यानी यहां हमने लगाई स्टोक्स थ्योरम। और अगर मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी है तो मैं इसको कहां बदल सकता हूं? यूजिंग ग्रेडियंट थ्योरम मैं बदल सकता हूं इसको vb माइनस va, द 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन पाथ। लेकिन जब इन फिगर्स को आप देखते हैं तो हमारे पास इस फिगर में भी चलो एक पॉइंट में यहां कह दूंगा, एक यहां कह दूंगा, इस फिगर में भी चलो हम कह देंगे यहाँ ए है यहाँ बी है, पर व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ए एंड बी हियर? तो ये क्या बन गया हमारे पास? एक क्लोज्ड पाथ, और क्लोज्ड पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल क्या होता है? जीरो। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी हम यहाँ इस पॉइंट ए को चले, इस पॉइंट से चले और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, यानी वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए। और वी बी इक्वल टू वी ए हुआ तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो, यानी लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। दैट इज द कंसेप्ट, रिमेंबर दिस in this way. Okay, so the corollary 2 defines that the line integral of a closed surface is zero, hence the right hand side of the Stokes theorem is vanishes. Okay, this is the numerical example. कोई हमारे पास वेक्टर फील्ड इस तरह से दिया गया है 2xz प्लस 3y स्क्वायर y कैप plus 4yz square into z cap. Check the Stokes theorem for this square. Do yourself. That means you have to be do by yourself. Okay, so this is the conclusion, and that's all for now. Meet you in the next one. Thank you.